मल्टीप्लिकेशन रूल। निहाल, નિહાલ ને લગ્ન કરવા છે. શું કરવું છે? લગ્ન કરવા છે. પણ નિહાલ નો અમુક ક્રાઇટેરિયા છે. તો મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ શીખવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ either event is independent or dependent, or લખતા જજો. તો in case of independent event, if we want to find A intersection B, that will be probability A into probability B. What do you mean by independent event? Mr. A and Mr. B બંને શોપમાં કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદવા જાય છે. બંને એકબીજાને ઓળખતા નથી. તો બંને એ પ્રોડક્ટ બાય કરશે એની પ્રોબેબિલિટી, ધેટ ઇઝ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ. એ પોતાની ચોઇસ પ્રમાણે ખરીદશે. બટ ડિપેન્ડેન્ટ ઇવેન્ટ કોને કહેવાય? જ્યારે એક ઇવેન્ટ બીજા ઇવેન્ટ પર ઇફેક્ટ કરતી હોય. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિપેન્ડેન્ટ ઇવેન્ટ. For example, if there is heavy rain, there will be holiday in school. So that is dependent event. If the budget is good, the share market will go up. That is called dependent event. તો જ્યારે બે ઇવેન્ટ એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય તો એ ડિપેન્ડેડ ઇવેન્ટ કહેવાય. In case of independent event, probability A intersection B, A into B. Probability A intersection B intersection C is equal to probability A into probability B into probability C. પણ આપણો મેઇન ટોપિક શું હતો? નિહાલના લગ્ન. સો નિહાલના મેરેજ છે તો મેનની જગ્યાએ ચેન્જ કરીને નિહાલ લખી દો. A man want to marry a girl having following qualities. First, fair complexion, ગોરી તો હોવી જ જોઈએ. And probability is 1/20. Second, handsome dowry. કોઈ દેખાવડી બી જોઈએ, હા, ખાલી ગોરી નહીં ચાલે, ગુડ લુકિંગ પણ જોઈએ. ના આવે. હા, હેન્ડસમ ડોરી, સોરી. હા, એ સારું દહેજ આપે, મીન્સ વેલ્ધી હોવી જોઈએ, સોરી. ધેટ ઇઝ 1/50. સાડી વાળી નહીં ચાલે, કમ્પલસરી જીન્સ જોઈએ. તો વેસ્ટર્નાઇઝ મેનર એન્ડ એટીટ્યુડ્સ, પ્રોબેબિલિટી 1/100. એન્ડ બધું હોય પણ ભણેલી ના હોત ના ચાલે. એટલીસ્ટ ડોક્ટર, CA એન્જિનિયર, આવી કોઈ વેલ ક્વોલિફાઈડ જોઈએ. તો પ્રોફેશનલી ક્વોલિફાઈડ 1/100. જો આ બધી ક્વોલિટી હશે તો જ નિહાલ લગ્ન કરશે, બાકી નહીં કરે. પણ હવે અહીં ધ્યાન, મને કહો, જે ગોરા હોય દહેજ આપે? એવું કોઈ જરૂરી નહીં. જે ગોરા હોય એ જીન્સ પહેરતા હોય? सभी जरूरी नहीं है. जे गोरा हो वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, ये भी जरूरी नहीं है. तो ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट. सारी इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैन गेटिंग मैरिड टू सच अ गर्ल. अब निहाल ने डिसाइड कर दिया कि वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला अपने क्राइटेरिया में, तो उसकी शादी हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. तो यहां से ध्यान से देखना. हाँ, यस. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैन गेटिंग मैरिड टू सच अ गर्ल वेयर possession of above attributes is independent of each other. अपन ने कीधु छे कि all attributes are independent to each other. Attributes means लक्षण. So probability A, fair complexion. Probability B, handsome dowry. Probability C,
westernized manner, and probability D, professionally qualified. So probability that he will get married is equal to probability A intersection B intersection C intersection D. In terms of sentence, a girl is fair and handsome Dory and westernized manner and professionally qualified. सबको मैंने कौन से वर्ड से ज्वाइन किया? एंड से. और ये ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंटरसेक्शन के लिए मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरा आंसर इज 1/2 करोड़. तो निहाल को शादी के लिए एटलीस्ट 2 करोड़ लड़की देखनी पड़ेगी और 2 करोड़ में से एक तो ऐसी मिल जाएगी उसको. हाँ. सो ये पता चला इंडिपेंडेंट इवेंट में हम प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं. बराबर. 2 करोड़ है, बट याद करो वो सीन, डॉक्टर स्ट्रेन ने कहा था कि तुम्हारे पास एक चांस है, और वो एक चांस 2 करोड़ में से पहला भी हो सकता है ना. सो कीप इट अप निहाल. क्वेश्चन नंबर 46 सेम ऐसा ही सम है, ध्यान से देखना. A university has to select an examiner from a list of 50 persons. 20 of them are women. 50 में से 20 वीमेन है तो 30 मैन है. 10 of them knowing हिंदी, तो बाकी 40 को नहीं आता हिंदी. 15 of them being teachers, तो बाकी के 35 टीचर्स नहीं है. What is the probability that university is selecting हिंदी knowing woman टीचर? तीनों तीन इंडिपेंडेंट चीज है. जिसको हिंदी आता है वो सारी गर्ल है ऐसा नहीं हो सकता. ये इंडिपेंडेंट क्वालिटी है. तो मेरे साथ गिनोगे आप. क्वेश्चन नंबर 46. इवेंट है सिलेक्टेड पर्सन इज वुमन. सो प्रोबेबिलिटी ये कितनी होगी? टोटल कितनी वुमन थी? 20. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 20 डिवाइड बाय 50. इवेंट बी इज हिंदी नोइंग हमें ढूंढना क्या है वो देखो. वी नीड टू सिलेक्ट हिंदी नोइंग वुमन टीचर. तो एक वुमन की प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली. अब हिंदी नोइंग की, तो कितने लोगों को हिंदी पता है? 10 of them knowing हिंदी. तो हिंदी नोइंग प्रोबेबिलिटी भी कितने को हिंदी आता है? 10. एंड सी क्या होना चाहिए? टीचर. तो प्रोबेबिलिटी सी कितने टीचर थे? 15. तो उसकी प्रोबेबिलिटी 15 डिवाइड बाय 50. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग पर्सन which is woman and हिंदी knowing and टीचर. तीनों तीन चीजें होनी चाहिए ना. मैंने एंड इसलिए लिखा है इसलिए आपको पता चले कि इंटरसेक्शन करना है. यस. तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी. हाँ. 15 of them being teachers and the remaining 35 not. मतलब तो 50 लोग थे उसमें से 15 टीचर है तो बाकी के 35 टीचर नहीं है. हमें पर्सन को सिलेक्ट करना है. सपोज इन एक्सपीरियंस है बट उसने बीएड नहीं किया
बट ट्रायल बेसिस पे तो टीचर बना सकते हैं ना, मीन्स एक मूवी थी राजेश खन्ना की, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो छोड़ो ये मत सोचो। और ये गाना एमएसयू के लिए लिखा था, इसलिए सॉन्ग्स के बारे में लॉजिक नहीं लगाने का कभी कभी। बड़ी खबर। तो खबर ना हो तो नहीं है। एक गाना था ना राजेश खन्ना का, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो छोड़ो ये मत सोचो। ये गाना उसने एमएसयू के लिए लिखा था। उसमें कभी कभी नहीं सोचने का कुछ भी, वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये कितना था, 20 अपॉन वुमन कितनी थी, 20, 20 अपॉन 50। बी कितना था, 10/50। और सी कितना था, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 10 × 15। तो 3 ÷ 125। हो गया। क्लियर। 47 होमवर्क। 48। ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड करना पहले। अ प्रोडक्ट इज असेंबल्ड फ्रॉम 3 कंपोनेंट, ये ध्यान से वही सम है, बट पूछने का तरीका अलग है। आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर इतना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट बीइंग डिफेक्टिव इज 0.01, 0.02 एंड 0.05। एक्स का डिफेक्टिव होने का चांस 0.01, वाई का डिफेक्टिव होने का चांस 0.02 और जेड का डिफेक्टिव होने का चांस 0.05। What is the probability that assembled product will not defective? प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। कब प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होगी, कंपोनेंट्स इफेक्टिव नहीं होंगे। यस, तीनों 3 कंपोनेंट्स अगर गुड होंगे तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होगी। तो डैश कर। यस। तो सम नंबर कौन सा है, 48 लिखो तो। एक्स इज डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, तो उसको प्रोबेबिलिटी है 0.01। तो प्रोबेबिलिटी ए डैश 0.99, that is not defective. Y is defective, प्रोबेबिलिटी B कितना है, 0.02। तो प्रोबेबिलिटी B डैश 0.98, that is not defective. And Z is defective, प्रोबेबिलिटी C कितना है, 0.05। तो प्रोबेबिलिटी C डैश 0.95, that is not defective. આટલું ખબર પડી। क्वेश्चन में देखो हमें क्या ढूंढना है,
Find the probability that the assembled product will not be defective. तो हमें ढूंढना है assembled product is good. उसकी probability ढूंढनी है. Good means not defective. उसका मीनिंग क्या होगा? All components are good. इसका मीनिंग X and Y and Z are good. मेनली है ना, आंसर के लिए फॉर्मूला बी डैश ए डैश, उसकी जगह कंसेप्ट समझो सिर्फ क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे X गुड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.99. बराबर. तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी सी डैश. तो 0.99 इंटू 0.98 इंटू 0.95. सो योर आंसर इज 0.92. 169. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट आया. उसके नीचे लिखो एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मेरी तरफ से. फाइंड probability that product is defective. दो तरह से गिन सकते हैं. माइनस कर दे वाला करते शेड में कर जाएगा पी ऑफ ए पी ऑफ बी ऑफ पी ऑफ ए पी ऑफ बी और पी ऑफ सी को इंटू करोगे तो क्या आंसर आएगा? बैट तो बड़े जैसे ना डिफेक्टिव वर्ड तो नहीं, आप तीनों को इंटू करोगे तो उसका क्या मीनिंग होगा? एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों तीन डिफेक्टिव है. बट एक्स भी अच्छा है वाई भी अच्छा है, सिर्फ जेड डिफेक्टिव निकला तो क्या प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगी? तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव. इट मीन्स हमें क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी. इसका मीनिंग क्या होगा? एट लीस्ट वन पार्ट इज डिफेक्टिव. अगर एक पार्ट भी डिफेक्टिव हुआ तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाएगी. एटलीस्ट वन मीन्स एक डिफेक्टिव हुआ तो भी डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव हुआ तो भी डिफेक्टिव, और तीनों तीन डिफेक्टिव हुआ तो भी डिफेक्टिव. तो उसके लिए क्या हम ढूंढेंगे? एक मेथड है 1 माइनस प्रोडक्ट इज गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गुड. तो 1 माइनस प्रोडक्ट गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.92. तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.08. ये पहली मेथड हुई. इसको फॉर्मूला में लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इस तरह से ही फॉर्मूला बनी ना। फॉर्मूला हमेशा लॉजिक से बनती है। और एक फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक्स वाई और जेड तीनों तीन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, इसलिए इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से गिनोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। बोलो प्रोबेबिलिटी ए कितनी थी? 0. 01, 02 and 05. 01 plus 0.02 plus 0.05 minus A intersection भी 0.01 into 0.02, उसके बाद 0.02 into 0.05, 0.05 into 0.01 plus 0.01 into 0.02 into 0.05। गिनोगे तो आंसर वही आने वाला है, बट बहुत कुछ आएगा। 0 पॉइंट एडजस्ट मत करना। 0.40302। इसका टोटल, बट ये मेथड हम नहीं करेंगे। आंसर तो वही आने वाला है। जीरो पॉइंट 0.0768। 0.0831 है शायद। वो मुझे नहीं पता, बट वॉट एवर इट इज, मीन्स इसी प्रकार आंसर आएगा। ये आंसर सेम इसके जैसा ही होगा। यहाँ पे भी हमने राउंड ऑफ किया था 0.92 को, याद हो तो? राउंड ऑफ किया था ना? क्या ना? 0.08 राउंड ऑफ करके कर। और ये 0.92 को राउंड ऑफ किया था मैंने, देख लो यहाँ पे। 0.99 इंटू 0.98 इंटू 0.95 करो। एग्जैक्ट नहीं, उसके बाद कुछ था। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने पॉइंट के बाद राउंड ऑफ किया था, पॉइंट के बाद 4 डिजिट नहीं रखा था। 0.9217 के हो गए तो खबर 16। तो अगर यहाँ पे मैं 0.9216 लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। 0.08
3-1 बराबर है। तो अल्टीमेट आंसर सेम ही रहेगा, बराबर। तो ऐसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। पर लास्ट चार चार हाँ कौन पढ़ लास्ट क्लास चलो क्वेश्चन 49 होमवर्क एक बार रीड कर लेता हूं। एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ए एंड बी। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईच पार्ट इज सच दैट probability of defect in A is 0.08 and that in B is 0.05. What is the probability that assembled product will not any defect? सेम ऐसा ही है ऊपर जैसा ही। A product consists of two parts A and B, सेम वैसा होमवर्क। ना, एक सेकंड में आ रहा हूँ कि तुझे 100 यूनिट्स अपनी डिफरेंट नहीं थी। जब n दिया हो तो नंबर ऑफ यूनिट ढूंढने हैं तो n इंटू पी लिख के रखो। मेरे को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये बता दिया कि भाई प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना हमें आ गया। सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.82। अब मैंने 100 यूनिट बनाया तो उसमें से कितने अच्छे होंगे? 100 इंटू 0.82, तो 82 प्रोडक्ट अच्छे हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या इंडिकेट करता है कि एक यूनिट को अच्छा या बुरा होने का चांस, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने अच्छे और कितने बुरे। 51 देखो, a person is known to hit a target 3 out of 4 shots। तो 51 फर्स्ट पर्सन हिट टारगेट, 4 बार निशाना लगाया, कितनी बार सही लगा? 3 बार। उसके बाद सेकेंड पर्सन हिट टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स, 2/3। अब ये इवेंट डिपेंडेंट हुई या इंडिपेंडेंट? बराबर। आप कहीं पे कोई गेम खेलते हो निशान लगाने का, सत्तोड़ियो रमो છો, બરાબર? તો નિશાન જે તાકે એમાં તમે નિશાન તાકો ને પછી તમારા પછીનો પ્લેયર તાકે, બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ થઈ ને કે ના થઈ? થઈ। आगे find the probability that target is hit at all। हमें क्या ढूंढना है? probability of target hit at all मीन्स उसका मीनिंग क्या होगा? दोनों सक्सेसफुल हो गए। एक सक्सेसफुल हुआ तो टारगेट हिट हुआ ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, टारगेट સત્તોડિયોના પથરા પાડવાના છે, પહેલાએ પાડ્યું બીજાએ પાડ્યું બંનેએ પાડ્યું, टारगेट तो हिट हो गया ना। तो उसको मुझे दूसरे स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख सकता हूं टारगेट हिट बाय एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट मीन्स क्या होगा? ये यूनियन भी हुआ। अब इसको आपको खुद गिनना है, दो तरह से गिन सकते हो। एक, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी ए कितनी थी? 12 3 4
प्रोबेबिलिटी बी कितना था, और इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 लाने के लिए ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 4 से। 3 3 जा 9, 2 4 जा 3 2 जा अपॉन 12, तो 11/12। આપણે એવું થોડું કરશું. એવું કંઈ decide કરો કે P of A intersection be 3/4 into 2/3. मैंने पहले ही बताया इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। बट ये मुझे दूसरी तरह से भी गिन सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट एट ऑल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट नॉट हिट, बोल सकता हूं ना। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ए डैश क्या है, ए क्या था 3/4, तो ए डैश 1/4 और बी डैश 1/3। तो 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/12। 12 1 जा 12 माइनस 1/12, 11 डिवाइड बाई 12। लॉजिक आपका और आंसर भी आपको लाना है, कैसे गिनोगे दैट इज इमैटेरियल। एग्जाम में आपको आपका दिमाग यूज करना है। तो क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से आएगा, ये गेम जैसा है। क्लियर। सेम वैसा ही सम 52 होमवर्क। A problem in statistic is given to 3 students ABC. Their chances of solving A का 1/3, B का 1/5, C का 1/6. What is the probability that problem will be solved? मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, किसने किया वो नहीं पता, तो एटलीस्ट 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C ढूंढना है, कैसे मिलेगा, बट आसान रीत 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी, सिंपल। अब इसमें तो 5 बच्चे को प्रॉब्लम दे दी ABCD, तो उसमें तो A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला ही हम यूज नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल का फॉर्मूला है, 4 या 5 का तो नहीं है ना। तो तब कंपलसरी आपको कैसे गिनना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ई डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। $54 most important. A husband and a wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. कैसी इवेंट हुई, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट इवेंट हुई. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड वाइफ सिलेक्शन 1/5. तो मैं लिख के रखता हूं. क्वेश्चन नंबर 54. प्रोबेबिलिटी ए, husband selected 1/7. तो प्रोबेबिलिटी ए डैश वो रिजेक्ट हो गया. इतनी प्रोबेबिलिटी हुई. प्रोबेबिलिटी बी, वाइफ सिलेक्टेड. कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/5. तो प्रोबेबिलिटी बी डैश वाइफ रिजेक्ट हो गई 4/5. कितना पता चला? अब एक एक करके आप क्वेश्चन पढ़ोगे और मुझे आंसर बताओगे कि कैसे गिनेंगे हम. स्टार्टेड विथ किंग खान. पढ़ो किरण. Both of them will be selected. तो क्या ढूंढोगे आप? So Panjama is selected. दोनों सिलेक्ट हो गए ऐसा बोला. उसको और या एंड से ज्वाइन करो. या तो और या एंड. अथवा आएगा या अने आएगा. अने तो हस्बैंड एंड वाइफ सिलेक्टेड. तो मुझे क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिन लो. Your parents. रिजेक्टेड तो बस 6/7. अरे हस्बैंड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 तो रिजेक्ट की 6/7. कुछ चीजें मैं छुपा देता हूँ अपने तस्वीर के पीछे. લખે ને આપણે પેપરમાં તસવીર અમારા હૃદયમાં છે. ક્યારે લખે? હા. અને એનો ફોટો ના મૂકવો હોય. તસવીર અમારા હૃદયમાં છે. वैसे ही प्रोबेबिलिटी मेरे हार्ट में है. वंशिका कैसे चोट लो. अरे 1/5 तो 4/5. Husband and wife both selected. The parents who આપવાનું B of A, B of B શું આપવાનું તો સુધી આપવાનું. हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड को सिलेक्ट होने का पी ऑफ ए किया था. वाइफ सिलेक्ट होने का पी ऑफ बी किया था. तो ये इंटरसेक्शन बी. एंड मींस इंटरसेक्शन. चलो सेकंड वन निहाल. ध्यान से वापिस पढ़ो. ये ओनली वन है या एटलीस्ट वन है? Only one. तो दोनों में कोई डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना. अच्छा होता है अलग-अलग. ओनली वन. इसको भी दो तरह से गिन सकते हैं. कैसे? Monday select से मुझे 1 minus A कर दे. So that तो B five करते select the B of B dash minus रख देना और B of A रखा. यस. तो ये पहली मेथड हुई. हस्बैंड सिलेक्ट एंड वाइफ रिजेक्ट और
हस्बैंड रिजेक्ट I- एंड वाइफ सिलेक्ट। ऐसा लिखने के बाद ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हस्बैंड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? select करने के बाद 1/7 और वाइफ के रिजेक्ट होने की? 4/5 और मीन्स प्लस। हस्बैंड रिजेक्ट होने की 6/7 और वाइफ को सिलेक्ट होने की 4 1 जा 4, 7 5 जा 35 प्लस 6 1 जा 6, 35। तो 10 डिवाइड बाय 35, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। बट मैंने कहा था दो तरह से होगा। फेस को सुना हम्म। हमारी सर्दी में थोड़ी पहुंची बात मैं सर्दी को बोला है बहुत सिलेक्ट नहीं से अपनी बात है तो एक सिलेक्ट नहीं ना तो 1 माइनस कर दे तो ना सेमाथी फुल मार्क्स मतलब as to up to P of A intersection 1 minus P of A intersection B शायद ओनली वन सिलेक्टेड मीन्स एटलीस्ट वन में क्या आता है? या तो वन सिलेक्ट हुआ या तो दोनों सिलेक्ट हुए। मुझे चाहिए ओनली वन सिलेक्टेड, तो एटलीस्ट वन सिलेक्टेड में से बोथ सिलेक्टेड माइनस कर दूंगा। क्लियर? नाउ एटलीस्ट वन सिलेक्टेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब जब आपको आगे ए यूनियन बी ढूंढना है वहां पे ये अमाउंट लिख के आंसर मैच कर लेना। चलो थर्ड वन, वंशिका, उसका मीनिंग हम्म तो उसका मीनिंग हुआ बोथ रिजेक्टेड। उसको एंड या और से ज्वाइन करो। हाँ आयो, एंड या और से ज्वाइन करो। बोथ रिजेक्टेड, बोथ है तो एंड होगा या और होगा? एंड। husband and wife both हस्बैंड एंड वाइफ रिजेक्टेड, तो intersection प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश हो गया। 2 मिनट। और ये चौथा वाला एटलीस्ट वन सिलेक्टेड, find कर देता नहीं उस पर नहीं फाइंड किया, ये ढूंढने के बाद वो फाइंड करेंगे। एटलीस्ट वन सिलेक्टेड, उसके लिए लॉन्ग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रिजेक्टेड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। हाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ढूंढा है। हाँ वो वन में से वो माइनस करोगे। करो कंप्लीट, चलो 5 5।